Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about dermatological lesions of skin and also mucous membranes. These lesions can affect your dermis and these lesions can also be found in your mucous membrane or oral cavity. So let's discuss these in minute details. Contents of today's video is macules, papules, pustules, nodules, vesicles, bullae, plaques, and ulcers. So, in general sense, we consider all these in the same meaning, but there is technical difference between each lesion. So, we will discuss in detail the difference and unique feature of each lesion. Here in this picture, you can clearly see that this is nodules. Here it is cyst. This is bullae, macules, plaques, veils, vesicles, and pustules. So these are the different clinical appearance of different lesions. You can clearly differentiate clinically, but technical difference lie in their theoretical and histological considerations. So let's discuss each one in details. The first one is macules. So well circumscribed flat lesions that are noticeable because of their change from normal skin color. देखो हमारे पास इसमें कोई एलिवेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, ये जस्ट डिसकलर्ड स्किन है जो कि सराउंडिंग स्किन से डिफ्रेंशिएट होता है जस्ट ड्यू टू चेंज इन कलर. कोई एलिवेशन नहीं होगा, कोई कनकेविटी नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, जस्ट चेंज इन कलर होगा. दिस चेंज इन कलर में बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन or due to pigmentation. Let's see this. They may be red due to presence of vascular lesion or inflammation. In case of vascular lesion, there is high blood supply, so the lesion or the macules will look red. Or pigmented due to the presence of melanin. Pigment हो सकता है melanin के थ्रू भी और pigmentation भी हो सकते हैं. Just like hemosiderin and drugs. So all these agents can cause discoloration of the skin, and this flat discoloration of the skin is called macules. अच्छा, next one is papules. Solid lesion arise. देखो macule flat था, ये raised है above the skin surface that are smaller than 1 centimeter in diameters. Papules एक raised elevated lesion है जो कि 1 centimeter diameter से कम हो. Papules may be seen in a wide variety of diseases including erythema multiforme, simplex virus infection, rubella, lupus erythematosus, and sarcoidosis. So these are the different infections or lesions or diseases in which you will see papules. अक्सर सिनेरियो बनाई जाती है कि इरिथीमा मल्टीफॉर्म में डोमिनेंट लीजन कौन सा होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. तो आपने अगर कोई भी इन्फेक्शन इसमें हो, इरिथीमा मल्टीफॉर्म हो, लूपस एरिथेमेटोसिस हो, सर्क्यूडोसिस हो, मिक्स लीजन होता है, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट होता है वो एक ही होता है, तो इन लीजन्स में पेप्यूल्स डोमिनेंट लीजन्स होंगे. पेप्यूल मेक्यूल्स भी होंगे, पॉस्ट्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट लीजन्स पेप्यूल्स ही होंगे. अच्छा, इसके बाद पॉस्ट्यूल्स है. देखो पॉस्ट्यूल्स भी आप देख सकते हैं. अराइज लीजन, अगेन अराइज लीजन है कंटेनिंग पोरुलेंट मटेरियल्स. देखो पेप्यूल्स और पॉस्ट्यूल्स में डिफरेंस क्या है कि पेप्यूल्स राइज लीजन है, पॉस्ट्यूल्स भी राइज लीजन है, लेकिन पेप्यूल्स में साइज़ हम कंसिडर करते हैं, साइज़ विल बी लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. पॉस्ट्यूल्स में हम प्योरुलेंट डिस्चार्ज को कंसिडर करते हैं. तो ये दोनों पेप्यूल्स और पॉस्ट्यूल्स में डिफरेंस है. अच्छा, अब पॉस्ट्यूल्स की एग्जांपल्स क्या है, अब पॉस्ट्यूल्स की वेराइटीज़ कौन से हैं. तो हमारे पास एक्नीज जो है वो पॉस्ट्यूल्स की एग्जांपल्स है. एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है एक्नीज आर. खासकर हमारे पास जो पॉस्ट्यूलर सीरियोसिस है या फॉलिकुलाइटिस है, ये सारे एग्जांपल्स है पॉस्ट्यूल्स के. सो एक्नीज कॉमनली प्रेजेंट विद पॉस्ट्यूल्स स्पेशली ऑन द फेस एंड बैक. Pustular cirrhosis, a form of cirrhosis that include pustules. Folliculitis, infection of hair follicles leading to pustules. So all these are the
presentation of postular lesion. Nodules. These lesions are present deep in the dermis. देखो पोस्ट्यूल और पेप्यूल्स हमारे पास एलिवेटेड लेजन्स थे, मेक्यूल हमारे पास फ्लैट लेजन था, लेकिन जो डिप्रेस्ड है या डीप लीजन है वो क्या है, नोड्यूल्स है. एंड एपिडर्मिस कैन बी इजीली मूव ओवर देम. सिंपल है, कंकेविटी है, डिप्रेशन है, एक डीप है, नोड्यूल्स हमारे पास डीप होंगे. अच्छा, लाइपोमास हमारे पास एग्जांपल है नोड्यूल्स के. इसके अलावा हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे पास मेजॉरिटी जो लीजन्स होते हैं वो नोडुलर फॉर्म में होते हैं. इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा में जो स्किन कैंसर है उसके जो लीजन्स है वो हमारे पास नोडुलर फॉर्म में होते हैं. तो अगेन इस बात पर मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आपने हर एक एनोमली, हर एक सिंड्रोम, हर एक डिजीज़ का प्रोमिनेंट लीजन याद रखना है. इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. अच्छा, नोड्यूल्स क्या है? लाइपोमास में है बिनाइन ट्यूमर कंपोज ऑफ फेट टिश्यू प्रेजेंटिंग एज अ सॉफ्ट नोड्यूल्स. रूमेटॉइड अर्थराइटिस, nodules can form near joints as a result of chronic inflammation. Basal cell carcinoma, a type of skin cancer that can present as nodules. अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेसिकल्स है. एलिवेटेड ब्लिस्टर्स. वेसिकल भी एलिवेटेड ब्लिस्टर्स है कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड दैट आर अंडर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. वेसिकल्स और पेप्यूल्स हमारे पास दोनों राइज्ड है. पेप्यूल्स और पास्ट्यूल्स में हमारे पास डिफरेंस पस का था. वेसिकल में हमारे पास क्लियर फ्लूइड होगा. रिमेंबर दिस, वेसिकल्स और पास्ट्यूल्स में डिफरेंस ये है कि दोनों राइज लीजन है, लेकिन वेसिकल्स में क्लियर फ्लूइड होगा, पास्ट्यूल्स में पस कंटेनिंग फ्लूइड होगा, प्यूरिन डिस्चार्ज होगा. अच्छा, वेसिकल्स किस इन्फेक्शन में प्रीडोमिनेंट होंगे? चिकन पॉक्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस. देखो मेक्यूल्स हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में मेक्यूल्स भी थे, लेकिन प्रोमिनेंट जो लीजन्स होंगे हमारे पास वो सिम्प्लेक्स वायरस में कौन से होंगे? वेसिकल्स होंगे. वेसिकल्स क्या है? एलिवेटेड ब्लिस्टर कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड दैट आर अंडर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ब्लिस्टर्स हमारे पास एक अलग कैटेगरी है जो कि आगे आने वाली है. ब्लिस्टर जब 1 सेंटीमीटर से कम हो तो वेसिकल्स है, जब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर उसके नाम चेंज हो जाता है, जो कोई आगे मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ. लेकिन आपने याद रखना है, चिकन पॉक्स, a viral infection causing itchy vesicles all over the body. Herpes simplex, recurrent vesicles, especially on the lips or genital area. Contact dermatitis, allergic reaction causing vesicles. देखो, चिकन पॉक्स है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है. हर एक पर अलग अलग 15 से लेकर 20 मिनट तक वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको फिर वॉच कर सकते हैं. अच्छा, बुले क्या है? एलिवेटेड ब्लिस्टर लीजन कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड दैट आर ओवर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. देखो, बुले और पास्ट्यूल्स में कंफ्यूज नहीं हो सकते, लेकिन अब आप कंफ्यूज कहाँ पर होंगे? आप बुले और वेसिकल्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, पास्ट्यूल्स और पेप्यूल्स में कंफ्यूज हो सकते हैं. तो बुले क्या है? बुले हमारे पास ब्लिस्टर को आप एक कैटेगरी कंसिडर कर ले. ब्लिस्टर्स हमारे पास पर 2 टाइप से, अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो वो बुला कहलाएगा, अगर ब्लिस्टर 1 सेंटीमीटर से कम हो तो वो हो वेसिकल कहलाएगा. अच्छा, हमारे पास किस एनोमलीज, किस कंडीशन में बुले फॉर्मेशन होंगे? तो बुलस पिम्पेगॉइड, सेकंड डिग्री बॉन्स एंड पिम्पेगस वाल्गेरस. ये बुलस पिम्पेगॉइड एंड पिम्पेगस वाल्गेरस हमारे पास म्यूकोक्यूटेनियस वेजिकोलो बल्बस डिजीज़ है, जिस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आप दोनों को फिर वॉच कर सकते हैं. एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर काजिंग लार्ज टिन्स बुले. अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा? बुलस पिम्पेगॉइड होगा. सेकंड डिग्री बॉन्स कैन काज बुले ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन अंडर डैमेज स्किन. सिनेरियो बनाई जा सकती है, उसमें सेकंड डिग्री बर्न्स होगा. आपको पूछा जाएगा कि कौन सा लीजन प्रीडोमिनेंट होगा और डोमिनेंट होगा. एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पिम्पेगस वाल्गेरस क्या है? एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद फ्रेजाइल बुले दैट रप्चर इजीली. अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्लेक्स है. सॉलिड राइज लीजन दैट आर ओवर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, दे आर लार्ज पेप्यूल्स. देखो, पेप्यूल्स अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो, अगर लीजन 1 सेंटीमीटर, अगर सॉलिड राइज लीजन 1 सेंटीमीटर से कम हो तो वो पेप्यूल्स होगा. अगर पेप्यूल्स फिर साइज में 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो वो फिर प्लाक्स कहलाएगा. लेकिन पेप्यूल्स और प्लाक्स दोनों में फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होगा, वेदर इट इज़ प्रूरुलेंट और वेदर इट इज़ क्लियर फ्लूइड. दोनों में, प्लाक्स और पेप्यूल्स दोनों में कोई फ्लूइड नहीं होगा. जस्ट सॉलिड राइज लीजन पेप्यूल्स आर 1 सेंटीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड प्लाक्स आर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर. अच्छा, सीरियोसिस हमारे पास एक डिजीज़ है जो कि
इसमें प्लॉक्स प्रिडोमिनेंट होंगे। अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन करेक्टराइज बाय थिक करेक्ट स्केली प्लॉक्स टिपिकली ऑन द एल्बो नीज एंड स्कॉल्प। एक्जिमा हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन काजिंग इन्फ्लेम इची प्लॉक्स। टीना कॉर्पोरस फंगल इन्फेक्शन दैट आर कैन फॉर्म रिंगवॉर्म प्लॉक्स विद अ क्लियर सेंटर। तो आपने इस डिजीज़ के नाम याद रखने हैं कि इसमें ये लीजन डोमिनेंट होता है। अच्छा, अल्सर इस सबसे डिफरेंट है, लेकिन आपने याद रखना है अ डिफेक्ट इन एपिथेलियम इट इज़ वेल सर्कमस्क्राइब्ड डिप्रेशन लीजन ओवर विच द एपिडर्मस लेयर हैज़ बीन लॉस्ट। देखो, अल्सर और नोड्यूल्स दोनों डिप्रेस है, लेकिन अल्सर में क्या है, एपिथेलियम की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हुई है, तो फिर क्या कहलाएगा, अल्सर कहलाएगा। जस्ट लाइक वेनस अल्सर, डायबिटिक अल्सर एंड प्रेशर सोर्स। सो दीज आर द थ्री कंडीशन इन विच देयर इज डोमिनेंट रीजन इज अल्सर। सो ये अल्सर की शॉर्ट डिफिनीशन है, डिसकंटिन्यूएशन आर डिफेक्ट इन एपिथेलियम। अच्छा देखो, पैराम रिलीजन से अगेन आप समरी देख लें, म्यूक्यूल्स है, नोड्यूल्स है, आप देख सकते हैं डिप्रेशन है, पॉस्ट्यूल्स है, क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। प्लॉक्स है हमारे पास, वाइल्ड लीजन है, फिजिकल एंड बुले है जो कि ब्लिस्टर्स के सब टाइप्स है। फिजिकल हमारे पास लेस देन 1 सेंटीमीटर, बुले ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। फिजिकल्स दोनों में क्लियर फ्लूइड है। पेप्यूल्स हमारे पास राइज लीजन है लेकिन लेस देन 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, पेप्यूल्स के पैरेलल हमारे पास प्लॉक्स है लेकिन प्लॉक्स ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है। मेक्यूल्स हमारे पास जस्ट डिस्कलर स्किन है, कोई एलिवेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। नोड्यूल्स हमारे पास डिप्रेस फॉर्म्स है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट में फ्रीली आस्क करें। हर एक एनोमली हो, इन्फेक्शस डिजीज़ हो, उसमें म्यूको पे हमारे पास उसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन हो, मेक्यूल्स हो, प्लॉक्स हो, हर एक एनोमली मैंने डिटेल से डिस्कस की है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।